Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, once again, you are with your English teacher Shehnaz ma'am. Do you know what is our topic of the day? Yes, of course, we are going to start our next chapter, 8th, and the name of the chapter is Adventures of Isabel. Okay, so can you tell me what is the meaning of adventures here? So, I think you have read in your 7th chapter also. So there was the adventures of goat was given, no? So now here also this is given adventures of Isabel. So adventures means the unusual work. Okay, the things that we are doing totally different. That is unusual. Okay, so let us see what is given in this page or in this poem. Okay, so here we can see a picture of a bear, a little girl is also there. And before starting or before reading this poem, so let us warm up. So what is given here? Take the thing that scare you. So take out your pencil from your compass or from your table. So now you have to take the things that scare you. ओके सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केयर स्केयर की मीनिंग क्या है स्केयर की मीनिंग है डरना डर ओके सो जो चीज़ें आपको डराती हैं उन्हें यहाँ पे आपको टिक करना है लाइक फायर स्पाइडर्स अ डीप फॉरेस्ट डार्कनेस डॉग्स टाइगर्स ओके सो अ डीप फॉरेस्ट डीप मीन्स घना ओके अ डीप फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल darkness means andhera okay so here we all are scared of something or the other so हम जितने भी हैं all people in the world we all are scared of something okay हम किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं बट इज़ाबेल नोज नो फियर लेकिन जो इस पोएम में जो इज़ाबेल है उसे फियर क्या है ये तो पता ही नहीं है. So let us read the poem here. What the adventure that Isabel experiences and how she overcomes them. Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस वो फील करती है यहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस उससे मिलते हैं और हाउ शी ओवरकम्स देम और वे उन सबसे बाहर कैसे निकल के आती है. ओके सो लेट अस सी फर्स्ट स्टैंजा. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. Okay. So Isabel met. सो यहाँ पे जो MET met है ये क्या है एक पास्ट टेंस है ना पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सो यू नो दैट इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मीट ये जो है मीट का पास्ट टेंस है MEET मीट सो मीट मीन्स मिलना एंड मैट मीन्स मिला या मिली. Okay, so Isabel met an enormous bear. Enormous means huge, vast. Okay, बहुत बड़ा. So Isabel एक बहुत बड़े bear से मिलती है. Isabel didn't care. लेकिन जो Isabel होती है वो इसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती है उसे बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि what is enormous bear and what is all this. So उसे बिल्कुल भी इसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती है वो. द बेयर वॉज हंग्री द बेयर वॉज रेवेनस. ओके सो यहाँ पे जो बेयर होता है बहुत हंग्री होता है एंड बहुत हंग्री होता है. ओके जैसे कि आप कभी कभी बहुत फील करते हो ना कि हम मुझे आज आई एम टू हंग्री टुडे सो यू आर टेलिंग टू योर मम्मा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. सो दैट इज़ रेवेनस मीन्स वेरी हंग्री बहुत भूखा. ओके सो now the bear's big mouth was cruel and cavernous. ओके सो जो यहाँ पे जो बेयर का जो माउथ है वो बहुत क्रूअल है. ओके क्रूअल मीन्स बहुत ही क्रूर है. सो डू यू नो द अपोजिट ऑफ क्रूअल. yes you have told me in the class. so the meaning that opposite of cruel is kind. okay so here cruel and cavernous. सो जो कैवर्नस है यहाँ पे ये क्या है मीनिंग दिया हुआ है वेरी लार्ज एंड डार्क जस्ट लाइक अ केव. जैसे कोई गुफा है अंधेरी गुफा है ना वैसा ही इसका माउथ है क्रूअल एंड कैवर्नस.
ओके, द बेयर सैड इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पे जो बेयर है वो क्या बोलता है इज़ाबेल को? इज़ाबेल को बोलता है ग्लैड टू मीट यू। इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी। ओके, ग्लैड मीन्स हैप्पी। So here in this poem, do you know what the poet has describes about the girl? So the poet describes a fearless little girl. So what is the name of the girl? Yes, the name of the girl is Isabel. So Isabel is a girl who is fearless, जो बिल्कुल जिसे डर नहीं लगता है. Okay, now let us move on towards next page. So page number 69. Okay, let us see here. How do Isabel now? I'll eat you. So यहाँ पे जो बेयर है वो बोलता है इज़ाबेल तुमसे मिलके खुशी हुई और तुम कैसी हो? नाउ I'll eat you. अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ. ओके, इज़ाबेल डिडंट वरी. सो जो इज़ाबेल होती है वो बिल्कुल इसके बारे में वरी नहीं करती, मीन्स चिंता नहीं करती है. इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. ओके, स्क्रीम. सो ये जो स्क्रीम है थर्ड लाइन में जो थर्ड वर्ड दिया है स्क्रीम. स्क्रीम मीन्स शाउट. ओके, चिल्लाना. और स्करी मीन इज गिवन हियर मूव फास्ट विथ स्मॉल क्विक स्टेप्स. ओके, सो जब आप कुछ डेंजर फील करते हो या फिर आपके पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या फिर कुछ लिजार्ड आ जाती है तो आप क्या करते हो? आप चिल्लाते हो आप, या फिर दूर अपने छोटे छोटे स्टेप्स से भागते हो. बट यहाँ पे जो इज़ाबेल है डिडंट स्क्रीम और स्करी. वो ना चिल्लाती है ना ही वो अपने छोटे छोटे कदमों से भागती है. शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप. सो यहाँ पर वो क्या करती है? यहाँ पे वह अपने हाथों को वॉश करती है और अपने हेयर को स्ट्रेट करती है, सीधे करती है. देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप. ओहो, फिर क्या करती है इज़ाबेल यहाँ पर? इज़ाबेल उसे क्वाइटली जल्दी से खा लेती है. ओके, किसे खाती है? बेयर को. यहाँ पे देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप. तो यहाँ पे जल्दी से इज़ाबेल उसे खा लेती है. किसे खाती है? बेयर को. ओके, नाउ वंस इन अ नाइट एज अ ब्लैक एज पिच. So pitch meaning is given here in the box. A thick, black, sticky substance. Okay. So pitch. जैसे आप देखते हैं जब रोड बनती है जो वहाँ पे चारकोल यूज़ होता है ना वो एकदम ब्लैक होता है. तो यहाँ पे नाइट जो है बिल्कुल ही ब्लैक है. किसके जैसे ब्लैक है? पिच के जैसे. ओके, सो पिच क्या है? एक थिक सब्सटेंस है. ओके, सो वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच. एक काली अंधेरी रात. ओके, सो एक काली अंधेरी रात में जो बिल्कुल पिच के जैसे यहाँ पे कंपेयर किया है नाइट को. इज़ाबेल मेट अ विग्ड ओल्ड विच. ओके, जो यहाँ पे विग्ड है, विग्ड मीन्स होता है शैतान. ओके, दुष्ट शैतान. सो इज़ाबेल अब किससे मिलती है? वह एक ओल्ड विच से मिलती है. विच मीन्स एक जादूगर होता है, जादूगरनी. ओके, द विच's फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड. जो उसका विच का जो फेस होता है वो क्रॉस होता है. क्रॉस मीन्स लुकिंग वेरी एंग्री एंड रिंकल्ड. रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ. ओके, सो यू हैव सीन, आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनके अगर आप नोटिस करोगे उनके फेसेस में, उनके हैंड्स में एक रिंकल्स, कई रिंकल्स होते हैं ना. तो उनकी जो बॉडी होती है क्योंकि वो काफ़ी एजिंग पीपल होते हैं, ओल्ड हो चुके होते हैं, तो उनके जो रहता है फेसेस पे क्या होता है? फेस पे एंड बॉडी पार्ट्स में रिंकल्ड हो जाती, मीन्स झुर्रियाँ आ जाती हैं. तो सेम इन द सेम मैनर दैट विच इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी एंग्री एंड रिंकल्ड. और उसके फेसेस में क्या है? रिंकल्ड है, झुर्रियाँ हैं. द विच's gums with teeth were sprinkled. ओके, जो उसके जो टिथ होते हैं ना, जब वह अपना माउथ ओपन करती है, अपने टिथ दिखाती है तो वो जो उसके जो टिथ होते हैं चमक रहे होते हैं, स्प्रिंकल्ड करते हैं. सो हो इज़ाबेल द ओल्ड विच crowed. Okay, so see, look at here, crowed meaning is given here. Crowd, that is spoke very proudly. So कैसे वो बिल्कुल एकदम अकड़ के घमंड से बोलती है उसे,
हो इज़ाबेल द ओल्ड विच क्रॉड। सो यहाँ पे कौन बोलता है ऐसा? ये यहाँ पर विच बोलती, जो जादूगरनी होती है ना, वो बोलती है। I'll turn you into an ugly Todd. Okay, do you know the meaning of Todd? टॉड मीन्स होता है मेंढक, ओके, फ्रॉग। सो यहाँ पे ये बोलती है एक्चुअली दिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नो जादूगरनी या चुड़ैल भी बोलते हैं हम इन्हें, हम ना इसे चुड़ैल या जादूगरनी भी बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे ये बोलती है कि मैं तुम्हें एक अगली, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अगली एंड व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अगली? Yes, so the meaning of ugly is बदसूरत and its antonym or opposite is beautiful. So वो क्या बोलती है यहाँ पे? वह ये बोलती है इज़ाबेल को कि मैं तुम्हें एक बदसूरत अगली टॉड में चेंज कर दूंगी, यानी तुम्हें एक चेंज कर दूंगी एक अगली टॉड में, एक मेंढक बना दूंगी। इज़ाबेल डिडंट वरी, बट यहाँ पे जो इज़ाबेल होती है वो बिल्कुल इसके बारे में चिंता नहीं करती है। वरी मीन्स चिंता, ओके। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, अब यहाँ पे ना वो चिल्लाती है और ना भागती है। शी शोड नो रेज एंड शी शोड नो रैंकर, ओके। सो यहाँ पे जो रेड वर्ड दिया है रेज, सो इट्स मीनिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, ओके, एंड रैंकर मीनिंग इज गिवन डीप हैटेड और एंगर। सो यहाँ पे वो इतना गुस्सा होती है, वो अपना गुस्सा दिखाती है उस विच को, एंड बट शी टर्न द विच इन टू मिल्क एंड ड्रैंक हर। बट यहाँ पे इज़ाबेल क्या करती है, वो उसे अपना गुस्सा दिखाती है, बहुत गुस्सा है, वो अपनी फीलिंग्स उसको शेयर करती है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, और फिर क्या करती है, वो उसे मिल्क बना देती है और उसे पी जाती है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड इन दिस poem, that adventures of Isabel, okay. So what you have to do here, you have to learn the meanings also and you have to see the hard words also, okay. So that's all for the day. We will meet in our next video. Thanks for watching the video.